Hello everyone. Today let's start with a new chapter, aldehyde and ketones. Now everyone is familiar with the basic idea of aldehyde and ketones. The aldehydes are represented by RCHO, ketone with RCOR, general formula, as well as the structure of C double bond O. C double bond O is called as a carbonyl group. The carbonyl group is polar in nature, where oxygen is more electronegative in the carbon atom. So it has delta negative and delta positive charge, and it undergoes a resonance where the pi electron shifts on the oxygen atom, and this clearly indicates the polar nature of carbonyl group, where this carbon atom is sp2 hybridized, has a planar structure plus one unhybridized p orbital in case of carbon, which overlap with the another p orbital of the oxygen atom. So it is sp2 p overlap this bond, that is a sigma bond, and one unhybridized p orbital overlap with the another unhybridized p orbital of oxygen to form a pi bond, which is weak in nature. Now, classification of aldehyde ketones. Aldehyde can be aliphatic, aromatic. Similarly, ketones can be aliphatic, aromatic. They can be symmetrical, unsymmetrical. Aldehyde में formaldehyde is symmetrical in nature since it has two hydrogen atom equivalent on either side of the carbonyl group. But in case of normal aldehyde, all aldehydes are unsymmetrical because they have H on one side and R on the other side. Only formaldehyde is symmetrical. Whereas in ketone, we can have a symmetrical aliphatic where both the R will be same, or unsymmetrical or mixed ketone where both the R will be different. Same as with respect to aromatic. If both are same phenyl rings, it is symmetrical. If they are different, they are unsymmetrical in nature. So this is example of some symmetrical acetone, diphenyl ketone. These are symmetrical. But if you talk about methyl phenyl ketone, acetophenone, this is a mixed ketone. So this was a basic idea of the classification of aldehyde and ketone. Let's move on to the preparation of aldehyde and ketone. The first preparation of aldehyde ketones come from oxidation of alcohols. You have already done the oxidation of alcohols. Okay, when primary alcohol get oxidized, it results into the formation of R CH double bond O, aldehyde, and secondary alcohol on oxidation gives ketone. You have seen this reaction in case of alcohols, chemical reaction mein, where you use a strong oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7 in acidic media, KMnO4 in acidic and alkaline media, or conc HNO3. Then you have what about mild oxidizing agent, PCC, PDC, pyridinium chlorochromate dichromate, that is called as Corys reagent. ओपेनर ऑक्सीडेशन, कॉपर एट 573. माइल्ड का काम क्या होता है, अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड्स पे रोक दे. सेकेंडरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू कीटोन. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या होता है, दे विल ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड. ये आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल में देखा है. सो वी हैव डन दिस इन अल्कोहल फिनॉल ईथर, स्पेशली इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स. बट वन मोर पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, that is the point coming from Le Chatelier's principle. Suppose मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया है. सेकेंडरी अल्कोहल को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड. एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड इज ओपेनर ऑक्सीडेशन, अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज करके कीटोन में, डेफिनेटली. बट इन दिस रिएक्शन यू एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन टू इट. उसका रीजन क्या है, टू एक्सेलरेट द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में. बट सेकेंडरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ कीटोन इन दिस रिएक्शन. ओके, सो द कीटोन फॉर्म डज नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. वाई? बिकॉज यू आर टेकिंग एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड विच इज अ काइंड ऑफ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. In this reaction, secondary alcohol is oxidized to the cost of acetone, which is reduced to the isopropyl alcohol. मतलब secondary alcohol oxidize हो जाएगा, it gives ketone, and ketone instead get reduced to form a isopropyl alcohol. Okay, so this is the idea of opener oxidation. This is the idea of adding acetone या ketone to a oxidation of secondary alcohol, which accelerate the oxidation. बाकी सब idea आप लोगों ने alcohols में देखा है. Now the next preparation is only for JEE and NEET. मैंने देखो यहाँ पर हैश मार्क किया है इसके लिए. It is not in theory. Vacuum process. It is also a kind of a oxidation process
where alkenes are converted into aldehyde and ketone. For example, take ethene. You react this ethene with PdCl2, okay, lead chloride, +2 का charge है lead पे, and CuCl2, cupric chloride, in the presence of air or oxygen and water. So what will happen? The oxygen get added to the carbon atom, one of the double bond carbon atom, and it result into the formation of either aldehyde and ketone. अभी ethene लिया तो you get an aldehyde. If you take a propene, then the addition will take place on the second carbon atom, like a tautomerism product. OH आ जाएगा, H shift होगा, and you get a double bond, you get ketone here. It is only for JE and NEET. Second is the oxo process. Oxo process में क्या करना है? You take a alkene, you react with alkene at a high pressure under 100 degrees Celsius, pass carbon monoxide and H2 gas. याद है आपको syn gas? This is a syn gas, CO and H2. In the presence of a catalyst, that is cobalt carbonyl. Carbonyl is CO group. Cobalt carbonyl hydride. So what will happen? This propene result into the formation of two aldehydes. One is a straight chain aldehyde, because one of the C will be added. So one of the COH will be added on the first carbon atom to get a CHO as a major product, or COH will be added on the second carbon atom where there is a isomerism take place, methyl shift take place, and it forms a iso product. Can you see this? CHO इधर आ जाएगा तो ये दोनों ब्रांच बन जाएंगे, CH3 CH3, but straight chain will be the major product and iso will be the minor product. Branch will be the minor product. याद रखने का, straight chain major है और branch जो रहेगा वो minor रहेगा. This is oxo process. ये दोनों प्रोसेस सिर्फ आपको MCQs में दिखाई देंगे, not in theory at all. तो just remember कि alkene is being converted into aldehyde and ketone with respect to lead chloride, CuCl2 air, or with respect to cobalt tetracarbonyl hydride in under pressure 100 degrees Celsius. Okay. Now next preparation is coming from 11th standard. If you remember, hydration of alkene using 40% H2SO4, 1% HgSO4, H2O add होगा, OH goes to one carbon, H goes to the another carbon. फिर जहाँ पर OH गया है वहाँ पर tautomerism होता है, pi bond shifts on carbon, H goes to the third position, 1 2 3 1 3 migration, and इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर शिफ्ट होगा, सो यू गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन. ये हम लोगों ने अल्काइंस में किया है, उसको रिफर करना जिससे अल्डिहाइड कीटोन बन सकता है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑल्सो वी हैव डन दिस रिएक्शन. दिस इज कमिंग फ्रॉम अल्कीन्स. ओजोन इज ऑफ अल्कीन, आपको याद होगा, ओजोन ऐड करोगे, 1 O गोज इन द सेंटर ऑफ डबल बॉन्ड, 2 O C से अटैच होकर ओजोनॉइड बनते. टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स यू एड जिंक एंड वाटर, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से ब्रेक हो जाता है. फ्रॉम हियर इट ब्रेक्स, सेंटर O गोज टू जिंक. आपको याद होगा सेंटर O एक्चुअली वाटर के पास जाता है, देन वाटर ब्रेक दिस जिंक टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, वरना H2O2 बन जाएगा, रिएक्शन और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, एंड फाइनली गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन. जिंक नहीं ऐड करोगे, H2O2 विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये मैंने अल्कीन्स में सिखाया, सो यू हैव टू रिफर अल्कीन्स फॉर दिस रिएक्शन, बट वही सेम रिएक्शन ही है. हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइंस, हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कीन्स का किया था, अब अल्काइंस का करेंगे. हाइड्रोबोरेशन में सबसे पहले स्टेप में आपको याद होगा अल्कीन्स में किया था, B2H6 ऐड होता है, H गोज टू वन कार्बन and boron goes to the another carbon, so you get a complex that is 2 moles of CH. अब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड C थ्राइस B, ठीक है. सो यू गेट अ ट्राई अल्काइनिल बोरेट. अल्काइनिल मतलब अल्कीन से बना है. फिर यही ट्राई अल्काइनिल बोरेट को हम लोग H2O2 से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से आपको याद होगा ये पार्ट ब्रेक हो जाता है, this part breaks, OH goes to all 3 carbon and 3OH group of peroxide, H2O2 goes to boron, so you get a 3 moles of CH double bond C OH plus H3BO3. Then remember this compound, that is alkenol, undergoes tautomerism, where first shift में pi bond carbon पे जाएगा, then 1,3 migration of the hydrogen atom here and this shift inside. Okay, तो यहाँ पर 3 shift हो गए. Third hydrogen goes to the carbon, so you get a CH2 single bond C double bond O. This can be your aldehyde, this can be your ketone. Similarly इसी पे रिएक्शन देना हम लोगों को. देखो एसिटिलीन पे, तो if you do the reaction on acetylene,
हाइड्रोजन गोज टू दी 6 मोल्स लिया इनिशियली, तो हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन. ओके, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी डालो. अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन. बोरॉन गोज टू दिस कार्बन एटम. So you get a structure that is CH2 double bond CH thrice trialkyl borate, trialkynyl borate, ethinyl borate. Now this trialkyl ethinyl borate if it's been reduced with H2O2 तो H3BO3 निकल जाएगा, सारा OH C पे आ जाएगा जिससे B अटैच है. So minus H3BO3. So you get a structure that is CH2 double bond CH OH. फिर इसका टॉटोमेरिज्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट इनसाइड, हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन एटम. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड OH. टॉटोमेरिज्म. और ये रिएक्शन अल्कीन्स में होता तो सीधा अल्कोहल बनता, और उसका शॉर्टकट क्या हो गया? अब देखो ये रिएक्शन मुझे डायरेक्टली कैरी आउट करना है, तो अगेन सेम थिंग, आई टेक B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. तो हाइड्रोजन गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस, तो ये इधर पे आ जाएगा. ओके, तो फिर ये कार्बन बोरॉन पे जाएगा. सो जिसको जो ट्राई अल्काइल बोरेट बनेगा वो ऐसे फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज CH3. ये मॉलिक्यूल जाके अटैच होगा. ओके, H से CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस B. और फिर जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग HOH, we do the oxidation using HOH. ठीक है, H2O2 सॉरी, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस. सेम वही बोरेशन वाला रिएक्शन है, बोरॉन निकल जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया OH, टॉटोमेरिज्म, पाई बॉन्ड शिफ्ट हियर, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट आएगा, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन एटम. सो विथ टॉटोमेरिज्म 1,3 माइग्रेशन शिफ्ट, यू गेट द स्ट्रक्चर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनॉल्डिहाइड. So this was about addition of B2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विद रिस्पेक्ट टू डाइबोरेन. हम लोग ने अल्कीन्स का किया था जो हम लोग को एल्कोहल देता है. आप लोगों ने गाइस अल्कीन्स का रिएक्शन किया था जो हम लोगों को अल्कोहल देता है. फॉर एग्जांपल आपने अल्कीन लिया है, ये अल्कीन को B2H6 से रिएक्ट करोगे तो आपको याद होगा कि वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस, और B इधर पे आ जाता है. मतलब इसका जो इनिशियल कंपाउंड बनता है वो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा B. फिर इसके बाद में इसको H2O2 से रिएक्ट करोगे तो H किधर जाएगा? टू अ कार्बन हैविंग लेस. B किधर जाएगा? टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन. ठीक है, फिर जहाँ पर B अटैच होगा वहाँ पर फाइनली OH लगना चाहिए. डबल का सिंगल हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH. तो यू गेट दिस अल्कोहल हियर. एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मिलता है, मैंने बताया था कि OH माइनस गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस, सॉरी मोर हाइड्रोजन. इसके लिए एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मिला. OH माइनस पे नहीं गया, ये हम लोग ने अल्कीन्स में किया है रिएक्शन. Now when this alcohols are formed, it has been oxidized by using PCC, pyridinium chlorochromate, mild oxidizing agent. तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है. प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड. तो ये पार्ट CH2H पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में. CH3 CH2 CHO. तो ऐसा भी बन सकता है अल्डिहाइड. अल्कीन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो और फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर दो, या तो फिर अल्काइन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा एंड विल कन्वर्ट टू अल्डिहाइड एंड कीटोन. अब सपोज दिस अल्कीन, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली गोज टू अ कार्बन हैविंग वेयर लेस, तो ऑब्वियसली बोरॉन पे ये चले जाएगा. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस फाइनली. और फिर H2 से रिएक्ट करोगे तो जहाँ पर B जाता है वहीं OH आएगा, तो सिंगल बॉन्ड CH2OH. अब इसको PDC से रिएक्ट करोगे, ऑक्सीडेशन हुआ, माइल्ड है, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पर आ जाएगा CHO, अल्डिहाइड. सिंपल है. सो ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर कि हाइड्रोजन विल ऑलवेज गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस, बोरॉन गोज टू मोर, और जहाँ पर बोरॉन आएगा वहाँ पर OH आएगा. ये अल्कीन्स था, और अल्काइंस होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड रहता है, फिर वो टॉटोमेरिज्म होकर अल्डिहाइड कीटोन बनता है. सो दैट इज अ डिफरेंस. अल्कीन अंडरगोइंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड अल्काइन अंडरगोइंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन.
अल्कीन्स जाएगा तो वो अल्कोहल देगा एंटी मार्कोनिक, फिर ऑक्सीडाइज करके बना लो। अल्काइंस जाएगा तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, वो टॉटोमेरिज्म में जाके एल्डिहाइड कीटोन देगा। यहाँ आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा अल्कीन में। ओके, सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपरली कि अगर मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है आपको समझाने के लिए, सो यू हैव टू रिमेंबर कि C ट्रिपल बॉन्ड C on reacting with B2H6 and H2O2 gives alkenol, it gives an alkenol on tautomerism gives aldehyde or ketone. ठीक है, this was triple bond. But if you take a alkene C double bond C, you react this alkene with B2H6 and H2O2, so it will directly give you an alcohol. but ये जो अल्कोहल रहेगा वो कौन सा होगा, ये अल्कोहल जो बनेगा इट विल रिस्पेक्ट टू एंटी मार्कोनिक. देन दिस अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, PDC, कॉपर, ओपेनर ऑक्सीडेशन, इट विल गिव यू अल्डिहाइड एंड कीटोन. सो अल्काइन से टॉटोमेरिज्म से बनेगा और अल्कीन से अल्कोहल बन के फिर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा. बट यू कैन मेक अल्डिहाइड कीटोन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूजिंग बोथ. The next reaction is hydrolysis of geminal dihalide. जेमिनल डाइहैलाइड, जो जेमिनल डाइहैलाइड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों हैलोजन टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो या दोनों हैलोजन नॉन टर्मिनल पे हो. सो दिस वाज द टर्मिनल एग्जांपल. दिस इज अ नॉन टर्मिनल एग्जांपल. नाउ हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने देखा था अल्कोहल्स में कि RX विद एक्वस NaOH, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. हैलोअल्कीन्स में भी था. When RX reacts with aqueous NaOH, it undergoes nucleophilic substitution, मतलब SN में जाता है. X will be replaced by OH, तो you टर्मिनल से रिप्लेस किया तो you will get R CH OH OH. Unstable diol, आपको याद होगा when two OH present the same carbon atom, this becomes what, unstable. तो इट स्पॉन्टेनियसली लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल. देखो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकल गया, ये बॉन्ड जो है वो इंटरनली शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस H2O. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर RCH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड. और वही जगह पे नॉन टर्मिनल लिया तो फिर ये नॉन टर्मिनल अनस्टेबल डायोल बनाएगा. दैट इज RCOH दोनों रिप्लेस हो जाएंगे XOH से. एंड देन इट लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो अगेन यहाँ से OH एंड फ्रॉम योर H इज लॉस्ट, दिस बॉन्ड शिफ्ट इन साइड, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OR. सो अल्डिहाइड इज मेड फ्रॉम टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड एंड कीटोन is made from non-terminal geminal dihalide via unstable diol. तो जो unstable diol बोलता है spontaneously खुद से ही वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका बनाना है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, इथिलीन डाइब्रोमाइड, टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली पहले स्टेप के अंदर एक्वस के OH इनको रिप्लेस कर देगा. सो इट हैव CH OH अनस्टेबल, यहाँ से ये वाटर लूज कर जाएंगे. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, नाउ सी दिस रिएक्शन नॉन टर्मिनल लिया है. सो दोनों क्लोरीन को पहले आप रिप्लेस कर दोगे. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3C OH अनस्टेबल CH3, इसके लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ. इट लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन. CH2Cl2 लिया, देखो दो क्लोरीन है. सो यू गेट अ रिंग, यहाँ पर आ जाएगा CH हैज OH, एक Cl रिप्लेस हुआ, दूसरा Cl भी रिप्लेस हुआ, H2O निकाल दो, अनस्टेबल डायोल बन गया है. तो H2O निकाल दोगे, सो इट रिजल्ट इनटू दी फॉर्मेशन, जहाँ से H2O निकालोगे यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब एक डबल बॉन्ड O बचेगा. सो यू हैव CH डबल बॉन्ड O, बेंजाल्डिहाइड. ओके, सो वेरी सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल. याद रखना टर्मिनल हुआ तो अल्डिहाइड देगा डायोल बन के, नॉन टर्मिनल हुआ तो कीटोन देगा. द नेक्स्ट इज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम एक डाइवैलेंट कंपाउंड है. इसका जो सॉल्ट रहता है एसिड के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, इट विल बी RCOO ट्वाइस CA.
because it is divalent in nature, so you require 2 carboxylate ions, so RCOO twice Ca. Pyrolysis मतलब हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सपोज मुझे फॉर्माल्डिहाइड चाहिए, तो सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज करो, सो दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड से बना है, मतलब अगर मुझे ये कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो कुछ नहीं, HCOH 2 मोल्स, बस कैल्शियम क्या बन जाएगा, HCOO ट्वाइस Ca प्लस H2 गैस निकल गया। तो एसिड से कैल्शियम ने H2 गैस निकाल दिया, और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये दोनों H निकल गए, दोनों O यहाँ पर Ca से अटैच हो गए। ना कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को हीट करोगे तो वो ड्राई डिस्टिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। Now CO2 can be removed in the form of salt. तो when you heat calcium format alone in the absence of air, देखो ये ब्रेकिंग ऐसा हो जाएगा, Ca, ये देखो ये पार्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा, See this part is broken down, that is CaCO3 is broken down, this H goes to C, so you get H C double bond H formaldehyde plus CaCO3। CaCO3 को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CO2 NCO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी रिलीज होने वाला है ना। कोई दूसरा अल्डिहाइड बनाना है तो एक साइड कैल्शियम फॉर्मेट लो और दूसरी साइड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड लो। R कैन बी एनी, जो भी आपको अल्डिहाइड बनाना है। ओके, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड। इफ यू वांट टू मेक एनी अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मा नहीं चाहिए आपको, दूसरा कोई बड़ा अल्डिहाइड चाहिए, हायर अल्डिहाइड, सो यू टेक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ एसिड, R आप चेंज कर सकते हो, यू कैन टेक CH3C2H5, बट एक साइड होना चाहिए कैल्शियम फॉर्मेट, बिकॉज जब आप हीट करोगे ना, देखो ये पार्ट है ना पूरा, फ्रॉम योर दिस पार्ट, ये पार्ट, ये पूरा 2 मोल्स ऑफ CaCO2 निकलेगा ना, बोथ द H गोज टू दिस C, दोनों C के पास, सो यू गेट 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड H अल्डिहाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ CaCO3। Now if you want to make simple ketone जिसमें R सेम होता है, तो 1 molecule ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड लो, हीट करो, देखो यहाँ से निकल जाएगा CaCO3 is removed from your C, R goes to the C to form R C double bond O R plus CaCO3। Now if you want mixed ketone में आप 2 डिफरेंट सॉल्ट ले लो, यू टेक 2 डिफरेंट सॉल्ट, R' वाला और R वाला, फॉर्मेट मत लेना, कैल्शियम फॉर्मेट लिया सॉल्ट के साथ तो डेफिनेटली यू गेट एन अल्डिहाइड, हायर अल्डिहाइड। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ मिक्स कीटोन, तो ये टेक 2 डिफरेंट सॉल्ट, जिसमें देखो अगेन यहाँ से 2 मोल्स ऑफ, कैन यू सी दिस पार्ट, सी 2 मोल्स ऑफ calcium carbonate is eliminated, both the R dash goes to the C, so you get 2 moles of R C double bond O R dash plus 2 moles of CaCO3। तो remember this rule, formaldehyde चाहिए तो सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट, हायर अल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट विद कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, simple ketone only calcium salt of acid, and mixed ketone you get 2 different calcium salt of acid। but mixed ketone बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये दोनों भी सेल्फ डिकार्बोक्सिलेशन में जाके 2 और प्रोडक्ट देते हैं सेल्फ वाले, RCOR R dash COR dash, so it is difficult to separate them। okay, let's see some example in this। consider this example, calcium acetate, it is made from calcium salt of acetic acid। देखो अगर सिर्फ कैल्शियम एसिटेट को हीट किया CH3CO, so again when you heat this part get eliminated, see this part is eliminated, okay, part of CH3 goes to C, so you get a structure CH3 C double bond O CH3, acetone मिलेगा plus CaCO3। now you take calcium acetate with calcium propionate, तो calcium acetate calcium propionate देखो 2 डिफरेंट सॉल्ट है, इसको हीट करोगे, सो देखो ये पार्ट पूरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दिस पार्ट CaCO3 get eliminated twice, C, both the C2H5 goes to this C, so you get 2 moles of CH3 C double bond O C2H5 plus 2 moles of CaCO3, that is ethyl methyl ketone। now you take calcium formate and calcium propionate, तो again देखो यहाँ से 2 moles of calcium carbonate will be eliminated, H, both the H goes to C, so you get 2 moles of C2H5 C double bond H plus 2 moles of CaCO3। okay, now
सपोज मैंने एक साइक्लिक एसिड लिया था, एडिपिक एसिड, आपको याद होगा एडिपिक एसिड, ऑक्सैलिक, मैलेनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाया। तो अगेन आप हीट करोगे तो यू रिमूव दिस CaCO3 फ्रॉम योर, ये आपने निकाल दिया, तो दिस CH2 विल ऑटोमेटिकली गोस टू दिस C, अटैच हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 single bond CH2 single bond CH2. Now it is attached to C double bond O, 1 2 3 4 5 cyclopentanone plus CaCO3. So you get cyclopentanone in this. Now suppose you take calcium salt of benzoic acid, calcium benzoate, it is reacted with again calcium salt of formic acid. So here this part CaCO3 will be removed from here, both the hydrogen atom goes to C, so you get 2 moles of C6H5 C double bond OH plus 2 moles of CaCO3. Okay, so this is about decarboxylation of calcium salt of fatty acids. Okay, now remember only for MCQ this part, acid is heated in the presence of MnO, only for MCQs, at 300 Kelvin. When you take 2 moles of acid, suppose आपने 2 मोल फॉर्मिक एसिड लिया, you heat with manganous oxide at 300 Kelvin, तो एक एसिड का H अटैच हो जाएगा टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द फर्स्ट एसिड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, दिस H goes to O to form H2O और CO2 is eliminated, so you get H C double bond OH, formaldehyde plus H2O plus CO2. Similarly ये एग्जाम्पल देखो, see this example, RCOH, तो एक R C के पास जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा OH का, H goes to H to form H2O, so you get R C double bond R, ketone plus CO2 plus H2O. Similarly ये एग्जाम्पल लिया, देखो R डैश लिया तो ये अटैच हो जाएगा, so you get R C double bond R dash, mix ketone plus CO2 plus H2O. For example एसिडिक एसिड विद एसिडिक एसिड, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, CH3 goes to this C, CO2 is removed from here, H जाएगा OH के पास, so you get CH3 C double bond O CH3 plus CO2 plus H2O. चलो फॉर्मिक एसिड लिया एसिडिक एसिड के साथ में, तो दिस बॉन्ड ब्रेक हियर, फॉर्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव विद H goes to C, so it will form CH3 C double bond OH plus H2O plus CO2. So this was the reaction of acid in presence of manganous oxide. ये सिर्फ आपके MCQs के लिए, but decarboxylation of fatty acids ये आपके theory में भी use होगा. Okay, so remember these two reaction. Next video we'll move off to the next preparation of aldehyde ketones, that is reduction from alkyl cyanide.